Hi friends, you must heard about the labor codes recently passed by the Modi government. तो ये जो लेबर कोड है आपने जगह जगह देखा होगा, स्ट्राइक्स चल रही हैं, लेबर यूनियन उसको अपोज कर रही हैं। तो इतना ऐसा क्या है इन लेबर कोड्स में, क्या खासियत है, क्यों ये लेबर रिफॉर्म्स लाए गए, आज इन्हीं सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, in fact, labor is in the concurrent list, and there are multiplicity of labor law in our country at the center as well as in the state level. So to remove those to remove those contradictions and to simplify the labor laws, the recent codification is done. So there were roughly 29 central laws which are now codified into 4 laws. And not only the current labor codes, they are friendly to the employer, but they are also friendly to the employees. So a balance is kept under the current labor code passed by our parliament in 2020. So before starting, I am Gaurav Marwaha. I welcome you to our YouTube channel, and we have online as well as offline courses for IAS and MPPSC, and Unique IAS has given tremendous results for civil services, like we have all India 3rd rank, 7th rank, 23rd, 35th and other ranks in civil services exam. And in an MPPSC there are 3 times first rank for the post of deputy collector for MPPSC. So for assured success, join our new batches which are starting very shortly, just very limited seats, and the first and admission get valuable and attractive discounts. So let us start the recent labor codes. So why in news? The parliament has codified the 3 labor codes, and it is considered as a big boost to labor reforms. And there were 29 labor law now which has been codified into 4. And in the previous year, in 2019, the parliament has passed the first of the code, that is a wage code. तो कुल 29 प्रकार के लेबर श्रम से संबंधित कानून थे, अब उनको कुल 4 लेबर कोड में परिवर्तित कर दिया गया। एंड ये प्रक्रिया कोई 2020 से स्टार्ट नहीं हुई, दिस प्रोसीजर बिगैन फ्रॉम 2019, एंड फर्स्ट देयर वाज द वेज कोड, और वेज कोड के बाद अभी 2020 में जो पास हुआ है, that is industrial relation code, there is a social security code, that is occupational safety and health code. तो कुल अब 4 लेबर कोड में सिंप्लीफाई चीजें कर दी गई हैं। तो ये this is not only good for it is not only streamlined for the employer but also for the employees, also for the labor. So why the labor laws and the codes are passed? अब आप समझ ही गए, the labor is in the concurrent list, and there were number of laws at the center as well as at the state. There were contradictions. Now these things have been codified, they are being simplified, so it is easy to understand them. And by these reforms, the hiring and firing is made easy. तो हायरिंग एंड फायरिंग जब इजी होगा तो एक जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए भी एक उसको बड़ा क्लियर होगा कि मैं अब अच्छा काम नहीं करूंगा, कभी भी फायर हो सकता हूं, और जो एम्प्लॉयर है उसको भी एक फायदा होगा कि नाउ ही कैन काउंटर विद द चक्रव्यूह चैलेंज। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चक्रव्यूह चैलेंज। सो ये जो लेबर लॉ है, अब यूनिवर्सली ऑल ओवर द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे आर एक्सेप्टिंग इट, एंड इट इज इन ट्यून विद द नॉर्थ अमेरिकन हायर एंड फायर मॉडल। तो अगर हम चक्रव्यूह चैलेंज की बात करें तो दोस्तों आपको एक महाभारत की स्टोरी तो पता होगी कि अभिमन्यु न्यू हाउ टू एंटर इन द चक्रव्यूह बट ही डिडंट नो हाउ टू एग्जिट फ्रॉम इट। सो हमारे यहाँ के डियर फ्रेंड जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो इजीली किसी इंडस्ट्री को एक बार लगा तो लेते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो उद्योग ना चले तो उससे बाहर आने में कई बार उनको प्रॉब्लम जाती है, बिकॉज हमारे यहाँ के लेबर लॉस, हमारे यहाँ के जो सिक्योरिटाइजेशन लॉ हैं,
इंडस्ट्री जब क्लोजर की जाती है, वो लॉ थोड़े से टफ हैं काफ़ी। तो इसी को कई बार ट्विन बैलेंस शीट भी कहते हैं। ट्विन बैलेंस शीट का मतलब कई तरीके से हम लगा सकते हैं। इसका मतलब हम एनपीए से भी ले सकते हैं, एंड ट्विन बैलेंस शीट मतलब इंडेक्टनेस से भी ले सकते हैं। तो चक्रव्यूह चैलेंज को भी काफ़ी अब ये ईज करने वाला है। जो बार बार इसमें बात हो रही है हायर एंड फायर, हायर का मतलब है जो हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, एज पर देयर नीड दे कैन हायर द थिंग, दे कैन वट एवर दे वॉन्ट टू बाय और दे वॉन्ट टू हायर, और अगर उनको दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन फायर। तो इसी को कहा गया हायर एंड फायर, इसको भी ईजी कर दिया गया है। तो टोटल 29 लेबर लॉस थे जो कि अब 4 कोड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, और एक कोड जो है वेज कोड 2019 में आया। अब जो 3 नए लेबर कोड्स हैं, दैट इज IR इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दैट इज OSH दैट इज कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एंड SS कोड दैट इज सोशल सिक्योरिटी कोड। मोटी मोटी बात करें अगर हम, तो हम मोटी मोटी बात करेंगे कि जो रूल्स फॉर कंडक्ट फॉर द वर्कमैन, प्रीवियसली इट वाज 100, नाउ इट इज मेड इंक्रीज टू 300, यानी अब 300 तक जो श्रमिक किसी उद्योग में होंगे तो उसको अब श्रमिकों को हायर और फायर करना आसान होगा। नंबर 2, नाउ जो हमारा एम्प्लॉयर है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ही कैन कीप ए स्टाफ एट ए फिक्स टर्म, यानी हमारा उद्योगपति के लिए, हमारे जो नए स्टार्टअप्स के लिए एक तो चीज़ ये हो गई कि अब 300 श्रमिक तक उन पे रेगुलेशंस काफ़ी सिंपल होंगे। वे किसी भी व्यक्ति को रख भी सकते हैं, हायर भी कर सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अब वो एक फिक्स टर्म के लिए भी कोई अपना एम्प्लॉय रख सकते हैं, ये भी इसमें एक अच्छी बात है। और जो लेबर्स हमारे स्ट्राइक पे चले जाते थे, तो उसको भी अब लेबर्स को कहा गया है कि 40 डेज नोटिस ज़रूरी है आपको स्ट्राइक पे जाने के पहले या लॉकडाउन में जाने के पहले। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले हमारे यहाँ जो पब्लिक यूटिलिटी थी उनमें ही रिस्ट्रिक्शंस थी, अब इसमें भी रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है कि जो लेबर है वो ऐसे मनचाहे तरीके से स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। और साथ में ये भी बात है कि अगर आप किसी को फायर कर रहे हो तो जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, दे शुड क्रिएट री-स्किलिंग फंड टू ट्रेन द रीट्रेंच्ड एम्प्लॉय, यानी जो छटनी किए गए हैं उनको फिर से अगर स्किल उनको ऑब्वियसली ज़रूरत होगी तो री-स्किलिंग फंड बनाया गया है। एंड द ट्रेड यूनियन विद द सपोर्ट ऑफ 75% ऑफ द वर्कर विल बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी किसी भी उद्योग में अगर 75% वर्कर रिकॉग्नाइज करते हैं तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन बनाए जा सकते हैं। और जो पहले से लिटिगेशन को आसान बनाया गया है। एंड ऑब्वियसली अच्छा ये है कि देयर इज़ ए यूनिवर्सल, दे आर इन ट्यून विद द यूनिवर्सल लेबर लॉ एंड दे आर कोडिफाइड so that multiplicity and that complexity of the labor law is being minimized now, and easy hiring, easy firing वो उसको आसान बना दिया गया है। इस तरह से इसका फ़ायदा है। स्ट्राइक्स को पहले से टफ कर दिया गया, ये एक अच्छी बात है। और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम कह सकते हैं पहले 100 वर्कर्स तक होती थी, अब वो 300 वर्कर्स तक हो सकती है। तो ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसके अप टू 300 वर्कर्स हैं उनको आसान कर दिया गया है कि वो ले ऑफ कर सकें, हायर एंड फायर कर सकें। जो फायर किया गया उनके लिए रीस्किलिंग का भी प्रावधान रखा गया है। ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के भी बहुत सारे इसमें उपाय हैं। और अगर हम इन जनरल बात करें जो ये रिफॉर्म्स हुए हैं, तो एक तो आप ये तो बात समझिएगा कि फर्म्स विद अप टू 300 वर्कर्स कैन रिटेन स्टाफ विदाउट द गवर्नमेंट नॉट। तो एक चक्रव्यूह जो चैलेंज है उसको आसान किया गया है। देन सोशल सिक्योरिटी कवर की बात करें तो पहले जो सोशल सिक्योरिटी कवर था दैट वाज ओनली फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। गिग वर्कर अभी हम देखेंगे, गिग वर्कर इज अ वर्कर हु वर्क्स ऑन टेम्पररी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जैसे आप जब ओला आप जब हायर करते हैं या उबेर हायर करते हैं तो हो सकता है उसमें जो ड्राइवर हो वो तो गिग वर्कर हो सकता है उसका। तो या आपका हो सकता है अपनी वेबसाइट हो, आपकी वेबसाइट का जो SEO कर रहा हो वो एक गिग वर्कर हो सकता है। या आप अपना फूड जब ऑर्डर करते हो तो आपके घर में जो डिलीवरी बॉय है उसको डिलीवर करता है वो भी एक गिग वर्कर एग्जाम्पल हो सकता है। एंड देयर इज़ ए कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दैट इज़ OS, दिस इज़ ए गुड कोड। एंड अब जो कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है इसमें
अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसमें उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, माइग्रेंट वर्कर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। एंड स्ट्राइक, अब आप समझिएगा, स्ट्राइक को पहले से टफ कर दिया गया है। गिग वर्कर्स को काफ़ी इसमें प्रमोट कर दिया गया है। गिग वर्कर्स जो ऐसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेम्पररी वर्कर, उन सबको गिग वर्कर्स कहते हैं, जो कि फ्रीलांसर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स होते हैं, पार्ट टाइम भी आप कह सकते हो। डियर फ्रेंड, जो बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे तो लाइक अमेरिका में तो 40% ऑफ द वर्क फोर्स बिलोंग्स टू द गिग वर्कर्स। तो नाउ द इकोनॉमी इज ग्रेजुअली इट इज मूविंग टुवर्ड्स द गिग इकोनॉमी। एंड गिग इकोनॉमी का मतलब है कि द इकोनॉमी इज नॉट लेड बाय द परमानेंट वर्क फोर्स बट बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क फोर्स। तो एक तरीके से जो गिग वर्कर्स को चूंकि इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये जो लेबर रिफॉर्म है ये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी देंगे। क्यों यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी देंगे? प्रीवियसली सोशल सिक्योरिटी वाज जनरली फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज के साथ साथ इसमें गिग वर्कर्स भी आ गए हैं, इसमें माइग्रेंट वर्कर्स भी आ गए हैं, इसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स भी आ गए हैं। तो ये काफ़ी हम यूनिवर्सल लेबर रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। और चूंकि इसका बड़ा अपोज हो रहा है कि हायर एंड फायर, तो लोगों को लग रहा है कि जब चाहे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को निकाल सकता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो ट्रुथ ये है कि ये नोटिस हैज़ टू बी गिवन बिफोर द रिमूवल, और 15 दिन का कंपनसेशन देना है इसमें। और ऑलरेडी मोर देन 16 स्टेट्स है डन सच रिफॉर्म्स। तो ये इसमें हकीकत है। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात है, वो इसमें एक जो नया कोड है OSH कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उसमें काफ़ी जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, एंड वीमेंस के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स हैं। एंड इसमें बताया गया है कि जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से रिलेटेड बात की गई है कि भाई आप 8 आवर्स से डे का काम लेंगे अपने वर्कर से, एंड विच शुड नॉट बी मोर देन 6 days a वीक। और उससे ज़्यादा अगर आपको काम कराना हो तो यू हैव टू पे देम एक्स्ट्रा, जो ज़्यादा उसका वेज रेट ज़्यादा होगा। एंड वीमेन जब भी आपको एम्प्लॉय करना है, तो even now, because it's an equality for men and women, so even women can be asked to work at night shifts, but with proper security and after her consent. तो इसमें लैंगिक समानता है, भेदभाव को कम किया गया है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड में। और महिला जो है वो अब रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेगी, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे और उसकी अनुमति भी ज़रूरी होगी। ट्रांसजेंडर्स के लिए इसमें काफ़ी प्रावधान हैं। और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है, उसमें माइग्रेंट वर्कर का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। एंड ओनली वन रजिस्ट्रेशन फॉर वन एस्टेब्लिशमेंट, एंड जो वर्कर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना ज़रूरी होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी होगा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। एंड ऑब्वियसली वीमेंस को काफ़ी राइट है, दे आर परमिटेड टू वर्क एट द नाइट शिफ्ट्स, and certainly there is an improve in the ease of doing business in our country. तो काफ़ी अच्छा है। सिने वर्कर्स को भी अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में लाया गया, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। एंड देयर इज़ ए थर्ड कोड, दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी कोड। तो सोशल सिक्योरिटी जो कोड है आपको पता ही है, इट इज़ रिलेटेड विद द एम्प्लॉय, विद द प्रोविडेंट फंड, इट इज़ रिलेटेड विद द मैटरनिटी बेनिफिट्स। So previously social security was in generally it was applicable for organized sector. अब आप समझ ही गए हो कि इसमें अब unorganized sector, gig workers and इसमें agriculture workers, migrant workers को भी ला दिया गया। तो there is a now universal social security जो इसमें प्रयास किया गया है। और ऐसे जितने भी इंडस्ट्रीज जिसमें 20 से ज़्यादा वर्कर हैं, तो वो तो उनको बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का। So employees provident fund organization will be applicable to the establishment having more than 20 workers. लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में 20 से कम वर्कर्स हैं, वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ये भी इसमें अच्छी बात है। एंड सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा जो कि इस बारे में काम करेगा, और बार बार हम देख रहे हैं कि गिग वर्कर्स को उसके अंदर ला दिया गया है। एंड गिग वर्कर मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। सो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, and these great reforms to all over the world. It's a matter of human rights. Now the labor are given the human rights, whether it is an unorganized worker or there is a migrant worker. और migrant worker उस worker को माना गया है who work on his own without any pressure, who works
who has migrated on his own from one state to another and whose wages is less than 18,000. तो उसको इसको काफ़ी फ़ायदा दिया गया है. And it is expected, it is believed that the new labor code will cover more than 50 crore of the workers of all segments, organized, unorganized, self-employed, gig workers. तो सभी को इसमें शामिल कर दिया गया है. And there is a good parity, gender parity in the codes. बहुत अच्छी बात है. और इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल कर लिया गया है. माइग्रेंट वर्कर को शामिल किया गया है. नई कैटेगरी भी शामिल की गई है. ओवरऑल बहुत अच्छे कोड है, सिंप्लीफाइड कोड है. अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सर्टेनली दीज कोड्स आर, you know, they are harmonizing, they are keeping a balance between the need of the work, between the needs of the workers and the requirement of the employer. तो employer और employee के बीच में भी बहुत इसमें एक बैलेंस रखा गया है ताकि दोनों coexist कर सकें. And no doubt it is in tune with number of things, like it will give a big boost to सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास. यानी इससे क्या होगा, इस तरह से एक बैलेंस अगर हम करके चलेंगे तो सबका साथ हम लेके चलेंगे, सबका विश्वास लेके चलेंगे और सबका इसमें विकास होगा. एंड हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे विल कम आउट ऑफ द चक्रव्यूह चैलेंज. वो भी फायदा है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी इंक्रीज्ड and it will enhance the foreign direct investment in India. There will be more technological collaboration. And जो अभी तक जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज थी, या तो बहुत हाई लेवल की इंडस्ट्री को इजी होता था या बहुत ही बिलो लेवल की इंडस्ट्री को जिसके 100 से कम वर्कर है. बट अब ये जो लेबर रिफॉर्म है इससे इवन ए मिडिल क्लास इंडस्ट्री विल बी इजी टू सेट अप एंड रन. So these labor laws are, you know, quite answerable, transparent, and they provide a simple and simplification in the codification. I hope they will give a big boom to the labor reform and the economy. Thank you very much.